Today we are discussing one of the topic, the grammar item. Today we are discussing about question number 15 for the grammar, the standard of intermediate first year. It's okay. There's those who are choice as a second language Hindi. Here, that in previous classes we have discussed the remaining, the grammar item. The grammar started from 11 to 16 questions, means that totally 6 questions are there for first year intermediate IP examination. For the marks of marks 40. It's okay. In previous class we have discussed up to 11, 12, 13 and 14. So now today we are discussing about our topic question number 15, mean last but one in grammar item. That's the title is निर्देश के अनुसार वाक्यों को शुद्ध कीजिए, mean correct the following sentences. In examination asking that question number 15, you correct the sentences as per asking that. So here in totally in this 15th question, the 5 bits are there. Like here, correct the sentences. Here, proper write the sentence in proper order. And next, pratyay, that means prefixes. Here is the suffixes. And upasarga means prefix. And ling means gender. And that vachan means numbers. Mean in these items, that 5 items are asked in as question number 15. As per the sentence, you should correct the proper way. Here right, today we first of all we take the first item of the question number 15. That's correct the sentences. That means the exercise is given here. So that's the item is vakya shuddhata. That means correct the sentence. Correct the sentences. So okay. Here you should practice the few sentences as a proper order. Then afterwards remaining that items in which are asking in the question number 15. Like here that's the pratyay means what one? Pratyay means suffixes. And that prefix is the last one. Another question bit is asking in the question number 15 as a gender, means the change the gender and that change the numbers. These all that 5 items are asking in the question number 15. Out of them, first of all, we taken that exercises. You should do the exercise that one by one orderly. So that first one item is the vakya shuddhata, mean correct the sentences as an exercise. You are asking the question like this only. प्रिय छात्रगण, आज शुभोदय. आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के लिए छात्रगण के लिए यानी छात्रों को व्याकरण, सरल व्याकरण से संबंधित प्रश्न नंबर 15 का विश्लेषण के बारे में अभ्यास करेंगे. यहाँ पिछले अंतर में ग्रामर माने व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नों का विश्लेषण किया गया, माने प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट हिंदी विषय के छात्रों के लिए जो अभ्यास होगा, माने व्याकरण का जो अभ्यास है वो प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक, माने कुल 6 प्रश्नों का यहाँ पर पूछा जाने की संभावना है. तो जिसमें जिसके अंकावली जो होगी, मार्क्स अंक जो होते हैं वो 40 अंक के लिए होगा, जिसको हम पार्ट बी के रूप में लेते हैं. पार्ट बी. पार्ट ए के अंतर्गत माने खंड क के अंतर्गत 60 अंक होंगे, जो खंड ख के अंतर्गत 40 अंक होंगे. कुल योग मिलाकर 100 अंक के लिए एक ही प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, है ना.
तो जिसके अंतर्गत 40 अंक के लिए प्रयोग होने वाले जो प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रश्नों का विश्लेषण पिछले अंतरों में उसके अभ्यास के समेत देखा गया और उसका विश्लेषण किया गया। अब प्रश्न नंबर 15 यानी व्याकरण अंशों में जो 6 जो विषय हैं वो 6 विषयों के प्रश्नों वालों में लास्ट बट वन यानी ये 15वां प्रश्न का यहाँ पर विश्लेषण इस अंतर में किया जाएगा, जिसका प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत शीर्षक क्या होगा, क्या सूचना दी जाती है, निर्देश के अनुसार माने जैसे सूचना दी गई है उसके अनुसार वाक्यों को शुद्ध कीजिए, करेक्ट उसको सुधार करना है। जैसे अपने प्रश्न पूछा गया वैसे ही उसका उत्तर लिखना है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या पूछा जाएगा, वाक्य को शुद्ध कीजिए, अने प्रत्येक के रूप से वाक्य को सुधार कीजिए, अने क्या है, अने इसके बाद उपसर्ग दिया गया वाक्य के अंतर्गत एक शब्द को रेखा का अंकित किया जाएगा, रेखांकित किया जाएगा, उसके शब्द के अंतर्गत उपसर्ग क्या है पहचानना चाहिए। और उसके बाद वाक्य के रूप में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वाक्य के अंतर्गत एक शब्द का क्या होता है रेखांकित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत रेखांकित किया गया उसका लिंग बदल कर लिखना होगा। जैसे लड़का, कक्षा में लड़का बैठा है, नहीं वो लिंग बदलिए, कक्षा में लड़की बैठी है, या तो वाक्य पूर्ण रूप में लिखना चाहिए या तो लड़का के जगह लड़की लिखने मात्र से भी आपको उत्तर अंक मिलेंगे, है ना। उसके बाद वचन के संबंध में क्या पूछा जाएगा, इसी जैसे लिंग के बारे में जैसा प्रश्न है उसी प्रकार वाक्य रूप में एक प्रश्न देंगे, कक्षा में लड़के बैठे हैं, तो इसको वचन बदल कर लिखिए। रेखांकित किसको किया गया, लड़के वाले वाक्य को, शब्द को रेखांकित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया, वचन को बदलना है। किसका वचन बदलना है, वाक्य में जो रेखा अंकित किया गया वो रेखा के अंकित वाले शब्द का वचन अगर एक वचन में है तो उसको बहुवचन में, जब बहुवचन में है तो इसको एक वचन में बदलना पड़ेगा। जिसमें लड़के का माने क्या हो गया, लड़के बहुवचन है तो इसलिए कक्षा में लड़के बैठे के जगह लड़का बैठा है के रूप में इसको परिवर्तन करना है। इस प्रकार से अभ्यास के रूप में क्या होता है, प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत वाक्य शुद्धता, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, इस प्रकार से 5 वाले वाक्य भिन्न शब्दावली यहाँ पे देखी जाएगी। इसके अनुसार सूचना के अनुसार उसको बदल कर लिखना होगा। इनमें पहला वाला जो विषय है वाक्य शुद्धता, इसके संबंधी कुछ यहाँ पर नमूने के अभ्यास के रूप में यहाँ वाक्य दिए गए हैं। इसके अनुसार बाकी रिमेनिंग माने इसके प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी, लिंग और वचन के संबंधी भी अभ्यास देखा जाएगा, जिससे प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाग नंबर 2 मैंने खंड ख के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न नंबर 15 का उत्तर सही अंक के रूप में यहाँ पर 5 का अंक यहाँ पे अर्ध लिखा, मेन 8 दे जाएंगे, 8 में से किसी भी 6 को मात्र लिखना है, इसके लिए 6 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार देखिएगा, जैसे अभ्यास के रूप में हियर दैट एक्सरसाइज गिवन एज पर दैट करेक्ट द सेंटेंसेस, ओके। यार मैं चाय पीता है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया, मैंने माई सेल्फ, आया मैं, यहाँ पर मैं जब होता है प्रथम पुरुष एक वचन होने से क्रिया जो होता है साधारण रूप में किसके अनुसार बदलता है, वो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। कर्ता पुल्लिंग है, इसका समापन भी पुल्लिंग में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं प्रथम पुरुष एक वचन होने से इसके साथ में हूँ के साथ समापन होता है। जस्ट लाइक यार एग्जाम्पल, आई के साथ में आई एम ए बॉय, जैसे देखिएगा, जैसे ठीक है, आई एम ए बॉय, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई दैट प्रीपोजिशन शुड यूज रेयर एम। आई मीन्स माई सेल्फ सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ए बॉय, ए बॉय जो होता है आई के साथ में एम का रूप लेकर बॉय का संबोधन होता है।
आई एम ए बॉय, जस्ट लाइक आई जहाँ में भी आता है एम के साथ उसका होता है। मीन जस्ट लाइक हियर गिवन हियर आई एम ए बॉय, एम इज दैट प्रिपरेशन यूजिंग बिफोर ऑफ यार बॉय, यार सब्जेक्ट यार ऑब्जेक्ट, in between which word is using as am only, but I is I are is not use that. इसलिए इसी प्रकार से here also that in Hindi here my means प्रथम पुरुष एकवचन, that means first person singular। चाय पीता है, आई के साथ में जब है मीन्स इज, आई इज ड्रिंकिंग टी इज नॉट ए गुड सेंटेंस है। यू आर गिवन आई मीन्स आई, चाय मीन्स टी, पीता हूँ मीन्स ड्रिंकिंग, आई इज है मीन्स इज, है मीन्स आर। यहाँ पे क्या होना है, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स इज नॉट यूज हियर, आई इज नॉट, आई इज ड्रिंकिंग टी नॉट गुड, is not a proper sentence, so what should write here, I am drinking a tea means आई के साथ जब भी होता है am जैसा अंग्रेजी में आता है, इसी प्रकार हिंदी माध्यम में भी प्रथम पुरुष के संबंध में यानी यहाँ पर हूँ के साथ समापन होता है, हूँ मीन्स am, ओके। यहाँ पर इस तरह से यहाँ क्या लिखनी चाहिए, मैं चाय पीता हूँ, इस प्रकार का लिखा जाना उचित है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं चाय पीता है, यह वाक्य का प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, मैंने शुद्ध रूप नहीं, क्योंकि यहाँ पर त्रुटि क्यों दिखी गई, यहाँ पे कर्ता जो होता है प्रथम पुरुष एकवचन है, उसका समापन जो होता है पुरुष के अनुसार यहाँ पे हूँ के साथ समापन होने चाहिए। जहाँ कहीं भी मैं के साथ वाक्य आरंभ होता है तो उसका समापन हूँ के साथ होनी चाहिए। एक ध्यान में रखना, यू कीप इट अप योर माइंड, यार व्हेन यू स्टार्ट द सेंटेंस इन हिंदी विथ मैं, यार एंड्स विथ हूँ वर्ड, ओके। सो दिस इज सेम वे, यानी मैं चाय पीता है, मैं चाय पीता हूँ, है बोले तो इज होता है, आई इज ड्रिंकिंग आर टेकन, लाइक दिस वन इज नॉट गुड। तो इसी प्रकार वह शिक्षा दिया, वह शिक्षा दिया, ये इसके अंतर्गत तो कोई प्रत्यय का रूप नहीं है, इसलिए क्या करना, इसको वह का माने उसने, उसने शिक्षा दी। यहां पर देखेगा कर्ता कर्मा के बीच में किसी प्रकार का ने प्रत्यय आता है तो जब क्या करना चाहिए, कर्ता क्रिया का रूप जो होता है कर्ता के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार बदलता है ना। ये कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। कर्म क्या है, पुल्लिंग है तो यहाँ पे भी पुल्लिंग है, यहाँ एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन होना चाहिए। जैसे देखिए वह का माने ही और शी कुछ भी ले सकते हैं, वह शिक्षा दिया माने पुल्लिंग रूप में दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, शुद्ध वाक्य को भी शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे दोनों के बीच में प्रत्यय को जोड़ना चाहिए। जैसे ने प्रत्यय को जोड़े तो जब क्या होता है, ये सही एक वचन हो या बहुवचन हो या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई संबंध नहीं क्रिया का। जब संबंध होता है तो क्रिया का किससे होता है, कर्म से होता है, कर्म के अनुसार। जैसे शिक्षा क्या होता है, शिक्षा शिक्षाया शिक्षाएं का दो नहीं ले सकते हैं, शिक्षा है यहाँ पर शिक्षा का रूप है। यहाँ जो शब्द के ये स्त्रीलिंग है, कैसे पता है, जो प्राणीवाचक के लिए लिंग निर्धारण नहीं है बल्कि हर शब्द का लिंग और वचन निश्चित है, जिसके बारे में देखा गया जो शब्द के ये शिक्षा अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक के लिए भी लिंग वचन निर्धारण है। जैसे यहाँ पर देखिए शिक्षा शिक्षाएं माने उसने शिक्षाएं प्राप्त की नहीं बोलेंगे, शिक्षा प्राप्त की, इसमें या क्या होता है, उसने शिक्षा दिया के जगह दी, क्योंकि शिक्षा स्त्रीलिंग रूप होने से इसको यहाँ पर दी के साथ इसका समापन करनी चाहिए। वह शिक्षा दिया, उसने शिक्षा दी। इसी प्रकार वे धीरे से चले गए, वे मीन्स दे, धीरे से स्लोली वेंट आउट माने गए चले गए। तो यहाँ पर क्या करनी चाहिए, वे धीरे से चले गए, वे धीरे से का रूप से बजाय इसको सुधार करने के लिए वो धीरे चले गए। सिंपली इसको अवॉइड किया जा रहा है, इसके करने से क्या होता है, अरे वे धीरे चले गए।
और अनदर वे जो होता है तो यहाँ पर से को ऐसे रखे भी इसको सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वे धीरे से चले गए तो वे का मतलब उन्होंने धीरे से चले गए। देखिए ये दोनों के बीच में ने प्रत्यय को जोड़ के इसमें दो प्रकार से इसको शुद्ध कर सकते हैं। सिंपली ये से को अवॉइड करने से भी वे धीरे चले गए, सिंपली सेंटेंस हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसको से को रखते हुए अगर शुद्ध करना है तो वे के जगह उन्होंने, जैसे वह के जगह उसने, वे के जगह उन्होंने, है ना। इस प्रकार से धीरे से चले गए। मैंने वे का मतलब उन्होंने बहुवचन में धीरे चले गए। अरे तो यहाँ पर धीरे से चलना ये स्त्रीलिंग रूप होता है ना। इस प्रकार पुल्लिंग रहने से इसको धीरे से चले। यहाँ पर धीरे वर्ड जो होता है स्लोली इज नॉट हैविंग दैट नो चेंज इन जेंडर और नंबर। मीन्स लड़के धीरे गए, लड़की धीरे गई, है। यहाँ पर धीरे से मतलब स्लोली, दिस नो चेंज लाइक मीन्स if you add use in singular or plural or male gender or female gender। इसी प्रकार यहाँ पर धीरे से जो शब्द होता है वो किस प्रकार से ने धीरे से ये पुल्लिंग रूप है, क्योंकि धीरया धीरये जिस शब्द के व्यवहारिक भाषा में या ये जो शब्द के समापन में आता है वो शब्द स्त्रीलिंग कहा जाता है। लेकिन ये शब्द के अंतर्गत जैसे पुस्तक है, पुस्तकें क्या रूप है, जैसे कुर्सी है या अप्राणिवाचक है, कुर्सी यहाँ का रूप होता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग रूप है। जैसे मिठाई है, मिठाई मिठाइयाँ, व्यवहारिक दिए गए शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में या ये के साथ में समापन होता है तो उसको स्त्रीलिंग रूप निर्धारण करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर और एक नियम क्या बताया गया, जो शब्द के बीच ने प्रत्यय के साथ कर्ता का प्रयोग होता है वो सकर्मक रूप से प्रत्यय के रूप में क्या होता है, कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। कर्ता के अनुसार साधारण रूप से क्रिया का रूप कैसे बदलता है, कर्ता के अनुसार बदलता है। लेकिन यहाँ पर कर्ता कर्म के बीच में जब ने प्रत्यय आता है तो वो कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। इस प्रकार से उन्होंने धीरे से चले गए। वे का मतलब है प्लूरल फॉर्म होने से उन्होंने बोलना है और वह सिंगुलर होने से उसने बताना है ना। तो इस प्रकार राम रावण को मारा। यहाँ पर सिंपली राम दोनों के बीच में राम मारा, है ना। किसको मारा, रावण को, है ना। यहाँ राम मारा किसको, रावण को। इस प्रकार से रावण स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, ये एक वचन हो या बहुवचन, कोई संबंध नहीं, मारने वाले से क्रिया का रूप बदलता है। माने कर्ता कर्म के बीच में किसी प्रकार का ने से को प्रत्यय कोई प्रत्यय नहीं होता है तो क्रिया का रूप कैसे बदलता है, कर्ता कर्म से बदलता है। पर यहाँ पे राम मारा ये शुद्ध वाक्य है, राम रावण को मारा ये शुद्ध वाक्य है। लेकिन शुद्ध वाक्य को भी शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, ने के बीच में अगर कर्ता कर्म के बीच में मैंने राम रावण के बीच में ने को जोड़ेंगे तो क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन आता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किसने किसको, ऐसे राम ने राम मारा, किसको मारा, रावण को। ये साधारण रूप है, इसको वाक्य रूप में परिवर्तन करना है, राम ने रावण को मारा। इस प्रकार का वाक्य शुद्धता होनी चाहिए। शुद्ध वाक्य को भी शुद्ध रूप ऐसे होता है, वह सबसे सुंदरतम है। जैसे लिखते समय वह सबसे सुंदरतम नहीं कहा जाता है, वह सबसे सुंदर है। सिंपली यू शुड अवॉइड द तम, सुंदरतम, है ना। ये सुंदरतम के जगह सुंदर है। साधारण रूप में वह रहने से है का समापन होता है। अगर वे है तो सबसे सुंदर, वे सबसे सुंदर हैं बोल के भी आता था। लेकिन यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का ने प्रत्यय नहीं है। ने प्रत्यय है तो नियम क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगा बल्कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। मोहन ने पुस्तक लिखा, मोहन
यहाँ पे दो पर लिख सकते हैं, ने को अवॉइड कर दिया गया तो ये रावण मोहन पुस्तक लिखा, क्योंकि मोहन पुल्लिंग रहने से लिखा कहते हैं। अगर मोहन की जगह राधा है तो पुस्तक लिखी बोल सकते थे। अब यहाँ पर मोहन ने पुस्तक लिखा, यहाँ पे ये वाक्य क्या है, ये देखिए ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि नियम क्या बताते हैं आपको, कर्ता कर्म के बीच में जब ने प्रत्यय आता है कर्ता से संबंध नहीं होगा, बल्कि कर्म क्रिया का रूप जो होता है कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। कर्म क्या है यहाँ पर, पुस्तक। अभी क्या बताया गया, दिए गए शब्द के व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में यहाँ एक के साथ समापन होता है एज पर द प्लूरल गिवन वर्ड्स, द प्लूरल प्रोनाउंसिएशन एज पर दैट, यहाँ दैट एंड ऑफ दैट वर्ड, सो इट्स कॉल्ड एज ए फीमेल जेंडर। मैंने यहाँ पे पुस्तक जो है दिए गए शब्द पुस्तक है, इसके व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में ये शब्द का व्यवहारिक भाषा बहुवचन में कैसे प्रयोग होता है, पुस्तकें, ये मेरे पुस्तकें हैं। मैंने पुस्तकें नहीं बोलते, पुस्तकें। यहाँ पे ए का जब आने से इसको स्त्रीलिंग रूप निदान किया। जब स्त्रीलिंग है तो लिखा नहीं बोलेंगे बल्कि लिखी। मोहन ने पुस्तक लिखी, इसको दोनों रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ये ने को अवॉइड करने से जस्ट लाइक हियर मोहन पुस्तक लिखा, इट्स अ करेक्ट ओनली। ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य को भी शुद्ध करना क्या करना पड़ता, फिर इसको ने के अनुसार क्रिया क्या होता है कर्म के अनुसार बदलने से इसको पुस्तक लिखी बल्कि इसको परिवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से ये वाले जो 6 वाक्यों के साथ अभ्यास के रूप में और कुछ वाक्य यहाँ पे देखे गए, जैसे मैं मेरे गाँव जाऊँगा, मैं मेरे गाँव के जगह क्या करनी चाहिए, मैं अपने गाँव जाऊंगा। इस प्रकार का वाक्य रूपने मैं मेरे बल्कि नहीं बताने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे आप तुम्हारा रुपया ले लो, आप तुम्हारा रुपया ले लो, आप अपना रुपया ले लो, ये रूप हुआ। इस प्रकार मैं मेरे जैसे बताएं, मैं मेरा के जगह मैं अपने गांव जाऊंगा। अपना गांव भी कर सकते हैं या अपने गांव भी कर सकते हैं। मैं अपना गांव जाऊंगा, ऐसे व्यवहारिक रूप में मैं अपने गांव जाऊंगा, इस प्रकार का करना उचित है। इस प्रकार गांव एक वचन रहने से, है ना, मैं अपना गांव माने मेरा गांव के जगह अपना का करना ये शुद्ध वाक्य है। वह इस प्रकार आप तुम्हारा रुपया ले लो, तुम यानी आपके संदर्भ में आपका ही प्रयोग लिखना चाहिए। आप तुम्हारा रुपया, आप अपना रुपया ले लो। इसी प्रकार वह घर को चला गया, वह घर को चला गया, वह को का रूप में वह घर चला गया। सिंपली को अवॉइड कर देंगे तो क्या होता है, वाक्य शुद्ध हो जाता है। ये साधारण रूप में लिखनी चाहिए, वह घर चला गया। तो मेरे को कुछ ना बोलो, मेरे को क्या जगह मुझे कुछ न बोलो माने बताओ, है ना। या नहीं तो इसको बोलो या बताओ क्या जगह मुझे कुछ ना बोलिए, इस प्रकार का करना भी उचित है। अरे मेरे को कुछ ना बोलो, मैंने कभी कभी हम प्रयोग में लाते हैं, अरे मुझे कुछ ना बताओ भाई, मैंने कुछ ना बोलो, मैंने बताना बोलना समान होता है, या बोलिए का शब्द भी लिख सकते हैं, मुझे कुछ ना बोलिए। इस प्रकार तुम तुम्हारे भाई को बुलाओ, तुम तुम्हारे जैसे यहाँ बताएं, मैं मेरे की जगह मैं अपने जैसा है, तुम तुम्हारे के हैं, तुम अपने भाई को बुलाओ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तुम का माने थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू,
माने मीन्स द्वितीय पुरुष में आता है, तो यहाँ पर मैं प्रथम पुरुष है, तू, तुम, आप, ये द्वितीय पुरुष है। इस तरह से यहाँ पर तुम अपने भाई के साथ, तुम अपने भाई को बुलाओ। तुम अब तुम्हारे के जगह अपने का प्रयोग करना चाहिए, भाई को बुलाओ, तुम अपने भाई को बुलाओ। इसी प्रकार तू तेरे भाई के साथ खेल, तू तेरे के जगह तू अपने भाई के साथ खेल। इस प्रकार का वाक्य के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ये व्यवहारिक भाषा से ग्रांथिक भाषा के लिखने में परिवर्तन होता है। यानी हर प्राणीवाचक के लिए लिंगवाचन नहीं होता है, बल्कि अप्राणीवाचक के लिए भी लिंगवाचन का निर्धारण है व्याकरण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जैसे लड़का कहने से क्या होता है, लड़की बोल के, बहुवचन में लड़का लड़के बोलते। इसी प्रकार ये लड़का ये प्राणीवाचक है, लड़की प्राणीवाचक है, लेकिन यहाँ पर मिठाई ये अप्राणीवाचक है। लेकिन जैसे लड़का या लड़की के लिए लिंग वचन है, उसी प्रकार मिठाई शब्द के लिए भी वचन है। जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, क्योंकि व्यवहारिक भाषा के बहुवचन में यहाँ एक के साथ जो समापन होता है उसको स्त्रीलिंग जैसा निर्धारण करना चाहिए। माने राम मिठाई लाया, राम ने मिठाई लाई, है ना। इस प्रकार से लाई के रूप में क्यों बताया गया कि लाने वाला राम है, फिर भी यहाँ पर लाई क्यों बताया कि राम, और राम पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन कर्ता रहने से ने प्रत्यय जहाँ भी आता है तो वहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया बदलता है। ये 3 विषय आपके मन मस्तिष्क में रखनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरा विषय है मैं मेरे की जगह मैं अपने भाई के साथ, आप तुम्हारे के जगह आप अपने के साथ है, इसका शुद्ध रूप है इस प्रकार तू तेरे भाई के साथ, तू अपने भाई के साथ। इस प्रकार यहाँ परिवर्तन करके यथातथा के रूप में मीन एज सेंटेंस को परिवर्तन चेंज करके लिखनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत पूछे जाने वाले यानी 5 प्रकार के प्रश्नों में मैंने एक प्रकार का जो विषय है वो वाक्य शुद्धता, इसी संबंध में वाक्य शुद्धता के करने के अंतर्गत क्या नियम है और वाक्य क्या अभ्यास है, कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है ना। ये जो है उदाहरण यानी कि अभ्यास का रूप है, ये वाक्य शुद्धता के संबंधी। ओके, धन्यवाद।